This is a step that we're taking to inflict further pain on Putin. But there will be cost as well here in the United States. I said I would level with the American people from the beginning. And when I first spoke to this, I said defending freedom is going to cost. It's going to cost us as well in the United States. Republicans and Democrats understand that. Republicans and Democrats alike have been clear that we must do this. Over the last week, I spoke with President Zelensky several times to hear from him about the situation on the ground and to consult and continue to consult with हम यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से लगातार बातचीत कर रहे हैं और यूक्रेन की यथास्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने लगातार यूक्रेन की स्थिति पर नजर बनाई हुई है और एक-एक अपडेट ज़ेलेंस्की से लेने की कोशिश कर रहे हैं। Weapons are arriving in Ukraine every day from the United States, and we, the United States, are the ones coordinating the delivery of our allies and partners of similar weapons, from Germany to Finland to the Netherlands. We're working that out. We're also providing humanitarian support for the Ukrainian people, both those still in Ukraine and those who have fled हम अपना safely to सहयोग neighboring यूक्रेन के साथ जारी रखेंगे और यूक्रेन को लगातार समर्थन करते रहेंगे। Tens of thousands of tons of food, water, and medical supplies into Ukraine, and with more on the यूक्रेन में way. हम Over the weekend, मेडिकल सप्लाई भी जारी रखेंगे। our border between लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए अमेरिका मेडिकल सप्लाई यूक्रेन को जारी रखेगा। The situation was firsthand and report back. General Milley, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of our Defense Department, was also in Europe, meeting with his counterparts and allies on NATO's eastern flank to reassure them, those countries bordering Russia, NATO countries, that we will keep our NATO commitment, a sacred commitment article of नेटो के कमिटमेंट को लेकर अमेरिका भी प्रतिबद्ध है, नेटो भी प्रतिबद्ध है। रशिया की सीमा से लगते तमाम इलाकों में नेटो अपनी तैनाती बढ़ाएगा, फोर्स बढ़ाएगा और हम सैनिकों के डिप्लॉयमेंट पर भी जोर दे रहे हैं। रशिया से लगी हुई जितनी सीमाएं हैं वहां पर नेटो के फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। And yesterday I spoke with my counterparts in France, Germany and the United Kingdom about Russia's escalating violence against Ukraine and the steps that we're going to take together. फ्रांस, जर्मनी के साथ और ब्रिटेन के साथ मिलकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। हम लगातार इन देशों के संपर्क में हैं और यथास्थिति को लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। रशिया ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया है उसे लेकर भी हम लगातार इन मुल्कों से बातचीत कर रहे हैं। The Russian ruble is now down to 50%, by 50% since Putin's announced his war. 1 ruble is now worth less than 1 American penny. 1 ruble is less than 1 American. यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है। आज के दौर में 1 रूबल की कीमत 1 अमेरिकी पेनी के बराबर रह गई है। उसकी जो करेंसी है वो लगातार गिर रही है और ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। In addition, we're choking off Russia's access to technology like semiconductors that are and sap its economic strength and weaken. हम टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर भी रूस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई को हमने रोकने का फैसला किया है जिससे रूस को किसी तरह की कोई सेमीकंडक्टर्स ना मिल पाए, जो कि आधुनिक तकनीक के तौर पर तमाम जो गाड़ियां हैं इसके अलावा आधुनिक तकनीक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसमें भी सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है और ऐसे में हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। They've suspended their operations in Russia. The U.S. Stock Exchange has halted trading of many Russian securities. And the private sector is united against Russia's vicious war of choice. The U.S. Department of Justice has assembled a dedicated task force to go after the crimes of Russian oligarchs. And we're joining with our European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets, and all their ill-begotten gains to make sure that they share in the pain of Putin's war. These, by the way, are giant yachts. You put some of them in your press. रूस से तेल के आयात पर बैन लगा दिया गया है। रूस से तेल नहीं खरीदेगा अमेरिका। रूस को सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर भी रोक लगा चुके हैं। रूस को गैस और एनर्जी रूस से अमेरिका नहीं लेगा। यूक्रेन को मानवीय और मेडिकल सप्लाई की मदद हम लगातार उपलब्ध करा रहे हैं। I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike here at home.
In coordination with our partners, we've already announced that we're releasing 60 रूस से तेल आयात पर बैन के बाद oil from our joint तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम तेल की कीमतों को कम से कम कैसे रख सकते हैं। इस पर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, हर संभव कोशिश की जा रही है। We're also going to keep working with every tool at our disposal to protect American families and businesses. Now, let me say this. To the oil and gas companies and to the finance firms that back them, we understand Putin's war against the people of Ukraine is causing prices to rise. We get that. That's self-evident. But, it's no excuse to exercise excessive price increases or padding profits or any kind of effort to exploit this situation or American consumers, exploit them. Russia's aggression is costing us all. And it's no time for profiteering. रशिया को उसके एग्रेशन के लिए उसकी कीमत चुकानी होगी और हम किसी भी तरह की हिंसा को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। रशिया को हर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। वक्त आ चुका है कि हम सभी अपनी भूमिका अदा करें। Let me be clear about two other points. First, it's simply not true that my administration or policies are holding back domestic energy production. That's simply not true. Even amid the pandemic, companies in the United States pumped more oil during my first year in office than they did during my predecessor's first year. We're approaching a record levels of oil and gas. रूस से तेल आयात पर बैन लगा दिया गया है। इससे अमेरिका की तेल जरूरतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों को आसानी से हर तरह के गैस और नेचुरल गैस और तेल की उपलब्धता रहेगी। हमने कोरोना काल में भी सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करके दिखाया। कच्चा तेल उत्पादन सबसे ज्यादा अमेरिका ने उस वक्त भी किया। They have 9,000 permits to drill now. They could be drilling right now, yesterday, last week, last year. They have 9,000 to drill onshore that are already approved. So let me be clear. Let me be clear. They are not using them for production now. That's their decision. These are the facts. We should be honest about the facts. Second, this crisis is a stark reminder to protect our economy over the long term. We need to become energy independent. I've had numerous conversations over the last 3 months with our European friends of how they have to wean themselves off of Russian oil. It's just not tenable. It should motivate us to accelerate the transition to clean energy. This is a perspective that our European allies share, and the future where together we can achieve greater independence. Loosening environmental regulations or pulling back clean energy investment will not lower energy prices for families. But transforming our economy to run on electric vehicles powered by clean energy with tax credits to help American families winterize their homes and use less energy, that will help. And if we do what we can, it will mean that no one has to worry about the price of the gas pump in the future. बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका में किसी भी तरह की कीमतों पर असर नहीं होगा और किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा। रूस से तेल आयात बैन करने के बाद कीमतों में इजाफा होगा। इस बात को लेकर चिंता जाहिर की जा रही। तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ये भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी स्तर पर जाकर तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा और अमेरिका हर संभव कोशिश करेगा कि कच्चे तेल के उत्पादन को और बढ़ाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के पेंडेमिक में भी अमेरिका ने यह कर दिखाया, इसलिए अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी और लोगों को निश्चिंत रहने की जरूरत है कि तेल की कीमतों में किसी भी तरह का इजाफा नहीं होगा रूस से तेल आयात बैन के बाद। Women, children, everyone in Ukraine, both Ukraine and I might add Russians. Ukrainian leaders, as well as leaders around the world, have repeatedly called for a ceasefire, for humanitarian relief, for real. तो जो बाइडेन को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई तरह के सैंक्शंस रशिया पर लगा दिए। इस बीच एक बड़ी खबर विवेक, माइकोलाइव में रूसी हेलीकॉप्टर ढेर कर दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है माइकोलाइव से, जहां पर रूसी हेलीकॉप्टर को ढेर किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन लगातार वार पलटवार का दौर यूक्रेन में जारी है और यूक्रेन में न सिर्फ वार पलटवार का दौर जारी है बल्कि हवाई हमलों में जो इजाफा रूस की तरफ से किया गया था उसको माकूल जवाब यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, रशियन हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया गया। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर जिसे माइकोलाइव में मार गिराया गया।
तो किस तरह से तबाह हो गया ये हेलीकॉप्टर, रूसी हेलीकॉप्टर का मलबा आप देख रहे हैं इस वक्त। माइकोलॉय से तस्वीरें आपको सामने रख रहे हैं। हेलीकॉप्टर ढेर कर दिया है, यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की है और हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया गया है। तो ये युद्ध 13वें दिन भी और भीषण होता जा रहा है। कई जगह तस्वीरें बहुत ज्यादा विभत्स सामने आ रही हैं और माइकोलाइव में कैसे यूक्रेनी सेना ने कैसे वार किया है ये हम आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से लगातार आपको बता रहे हैं वार पलटवार यूक्रेन और रूस में लगातार चल रहा है और आप देखिए कि किस तरह से एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। अटैक हेलीकॉप्टर को मारने के बाद इसके बाद ये जमीन पर धराशायी हो गया और यहां पर तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं रूस का यूक्रेन पर लगातार 13वें दिन भी हमला जारी रहा। रूस ने हवाई हमलों में तेजी ला दी है। कीव और साथ ही साथ जो दूसरे शहर हैं यूक्रेन के वहां पर भी हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद से स्थिति और भयावह होने लगी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से साफ हो गया है कि अमेरिका समेत नाटो देशों से अब यूक्रेन का भरोसा उठने लगा है। नाटो पर फिर भड़के ज़ेलेंस्की। रूस से डरता है नाटो। रूस से टकराव नहीं चाहता नाटो। यूक्रेन पर लगातार 13वें दिन रूस का जोरदार प्रहार जारी है। वहीं नाटो देशों को लेकर एक बार फिर ज़ेलेंस्की की नाराजगी सामने आई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो देश रूस से डरते हैं, वो रूस से टकराव से बच रहे हैं। Жінок, наших дівчат, дружин, наших матерів. Завжди. Але не сьогодні. Сьогодні я просто не можу сказати вам традиційні слова. Я не можу просто привітати. नाटो से ज़ेलेंस्की कितने खफा हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने यूक्रेन में हो रही मौतों के लिए पश्चिमी देशों पर ही ठीकरा फोड़ डाला है। Яке ніколи в своїй історії не загрожувало Росії. Добра, тиха, душевна Сумщина, яку перетворюють на пекло. Маріуполь – мирне і працьовите місто без будь-якої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували, спеціально виснажують, спеціально катують. दरअसल रूस के हवाई हमलों से बचने के लिए ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के देशों से बार बार अपील कर रहे थे कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें, लेकिन अमेरिका और नाटो के दूसरे देशों ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया, जिसके बाद ज़ेलेंस्की का नाटो से भरोसा उठने लग गया है। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन को अगर किसी भी देश ने नो फ्लाई जोन घोषित किया तो क्या होगा। किसी भी देश ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो सीधे सीधे रूस से टक्कर होगी। वो देश बाध्य होगा रूसी प्लेन को गिराने या उससे लड़ाई के लिए, यानी नाटो सीधे सीधे रूस के सामने होगा। नाटो देश ये नहीं चाहते कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस से वो सीधे जंग लड़ें। एक तरफ ज़ेलेंस्की जहां नाटो देशों से बेहद खफा है, वहीं उन्होंने दावा किया है कि रूस को पिछले 13 दिनों में जितना नुकसान हुआ उतना 30 सालों में नहीं हुआ है। Пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сума. Але все буде нормально. Всіх переможемо. इससे पहले ज़ेलेंस्की को भरोसा था कि रूस के हमले के बाद अमेरिका और नाटो उनकी हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस धोखेबाजी के चलते ज़ेलेंस्की अब अमेरिका और नाटो के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि युद्ध के 13वें दिन आखिर ज़ेलेंस्की खुलकर कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया। इतनी मौतों पर पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्रीज चुप हैं।
ये पहला इल्जाम लगाया गया ज़ेलेंस्की की तरफ से। पश्चिमी देशों ने लड़ाकू विमान तक हमें नहीं दिए हैं ताकि हम लड़ाई को और ज्यादा भीषण कर सकें। नाटो रूस से डरता है, इसी वजह से नाटो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और हमें नो फ्लाई जोन भी घोषित नहीं कर रहा है। अमेरिका और नाटो से हमारा भरोसा उठ गया है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बड़ा आरोप नाटो पर भी और अमेरिका पर भी। नाटो यूक्रेन को सदस्य नहीं बनाना चाहता है, ये नाटो क्लियर कर चुका है और ये रूस का डर है, इसी वजह से नाटो ऐसा कर रहा है। 13 दिनों में रूस को भारी नुकसान हमने पहुंचाया है, ये यूक्रेन इस बात को कबूल कर रहा है और रूस को 30 सालों में इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया जितना यूक्रेन ने इन 13 दिनों में पहुंचाया है। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि ज़ेलेंस्की ने सामने रखी है दुनिया के और कहा है कि दुनिया को यहां पर मदद करनी चाहिए। ये जंग जीने के अधिकार की लड़ाई है और दुनिया को यहां पर भेदभाव हमारे साथ ना करके हमारे समर्थन में बात करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। तो ये बड़ी बातें ज़ेलेंस्की से जुड़ी हुई। और चलेंगे विवेक के पास। और बड़ी खबर ये आ रही है कि किम्स्के में रूस सेना का कब्जा सामने आया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेनी सैन्य डिपो पर न सिर्फ तबाह किया गया बल्कि कब्जा भी कर लिया गया और सैन्य डिपो से कई हथियार जब्त कर लिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस लगातार यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। हालांकि यूक्रेन इस दावे को खारिज करता रहा, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्रिम्स्के में जो हथियार मिला और सैन्य डिपो जिसे कब्जे में लिया गया, उसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। Попалась нам такая интересная чашечка в характерной расцветке и с символикой 72-й отдельной бригады вооруженных сил Украины, как они ее сами называют, имени черных запорожцев. Ну, тут, собственно говоря. अमेरिका और नाटो देशों की बेरुखी से ज़ेलेंस्की सदमे में है। ज़ेलेंस्की के सामने अब कोई रास्ता बचा है तो या तो वो युद्ध लड़ने का एक रास्ता है या फिर वो रूस की शर्तों को मान ले। तो ऐसे में निधि ज़ेलेंस्की क्या करने वाले हैं? और ज़ेलेंस्की ने ये बात कह दी है कि क्योंकि हमारा साथ नहीं दे रहे हैं नाटो और अमेरिका, तो ऐसे में जो शर्तें रूस की तरफ से हैं उस पर बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूं, यानी ज़ेलेंस्की तैयार है। देखिए जरा रिपोर्ट। नाटो की बेवफाई, ज़ेलेंस्की को बहुत देर में समझ में आई। क्रीमिया पर रूस से बात करने को तैयार ज़ेलेंस्की। युद्ध के 13वें दिन जंग निर्णायक मोड़ पर आ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो रूस से क्रीमिया, डॉनबास, लुहांस्क पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं संभावित समझौतों पर बातचीत के लिए तैयार हूँ। क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क रिपब्लिक पर भी बातचीत के लिए तैयार हूँ। मीडिया ने जब ज़ेलेंस्की से सवाल किया कि वो रूस की मांगे मानने को तैयार है, तो ज़ेलेंस्की ने साफ कह दिया, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, समर्पण के लिए नहीं। ज़ेलेंस्की के बयान से साफ है कि अमेरिका और नाटो देशों से वो बेहद नाराज हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध जैसे मुश्किल वक्त में उनके साथ धोखेबाजी हुई है। इसका अंदाजा आप ज़ेलेंस्की के बयान से भी समझ सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दुनिया से यूक्रेन को बचाने की अपील की है। Сьогодні я просто не можу сказати вам традиційні слова. Я не можу просто привітати. Не можу. Коли стільки смертей, коли стільки горя, коли стільки страждань, коли триває війна. इस बीच ज़ेलेंस्की ने सेल्फी स्टाइल में वीडियो बनाकर पोस्ट किया। ज़ेलेंस्की ने सारी अफवाहों को खारिज करते हुए दावा किया कि वो कीव के अपने ऑफिस में मौजूद हैं। Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. 13वें दिन ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि वो रूस से क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेस्क रिपब्लिक पर बात करने को तैयार है। ये साफ दिखाता है कि ज़ेलेंस्की नाटो का साथ न मिलने के बाद अकेले पड़ गए। रूस को लेकर ज़ेलेंस्की के रुख में नरमी भी आई है। साफ है कि ज़ेलेंस्की रूस के साथ हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। अब देखना होगा कि ज़ेलेंस्की के बयान पर पुतिन की टीम का क्या रिएक्शन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या यूक्रेन रूस की शर्तें मानने जा रहा है? सवाल यह कि
रूस की वो 4 शर्तें कौन सी हैं जो कभी भी जंग को खत्म करा सकती हैं। पहली शर्त क्या है? सैन्य कार्रवाई रोके यूक्रेन। यह है रूस की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त। दूसरा, संविधान में बदलाव करे यूक्रेन। यह है रूस की दूसरी बड़ी शर्त। नेटो और ईयू में जाने का मसला खत्म करे यूक्रेन, यानी कि नेटो और ईयू से किसी तरह का कोई संबंध यूक्रेन नहीं रखेगा। यह रूस की तीसरी सबसे बड़ी शर्त है। चौथी शर्त भी आपके सामने रखते हैं कि आखिर क्या चाहता है यह रूस। डोनेत्स्क और लुहांस्क को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे, और साथ ही साथ एक और बड़ी शर्त मैं आपको बताता हूं, यूक्रेन अपनी सैन्य शक्ति का विलय यानी अपनी सेना का विलय रूस के साथ कर दे। ये है रूस की वो शर्तें जिसके बिना पर जंग को खत्म किया जा सकता है। लेकिन क्या ज़ेलेंस्की इन शर्तों को मानेंगे, इन 5 शर्तों को मानेंगे? यह बड़ा सवाल है। बड़ी खबर के लिए चलते हैं इस वक्त निधि के पास। निधि, आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल विवेक, एक बड़ी खबर इस बीच बता दें, यूक्रेन ने तबाह कर दिया है रूसी टैंक। एंटी गाइडेड मिसाइल से टैंक को तबाह किया गया है। टैंक पर हमले की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो यूक्रेन बहुत जोरदार पलटवार कर रहा है और यूक्रेन ने जो रूस का एंटी गाइडेड मिसाइल टैंक है, उसे एंटी गाइडेड मिसाइल से टैंक को तबाह कर दिया है। और ये देखिए, टैंक को तबाह करने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एंटी गाइडेड टैंक को तबाह कर दिया गया, और ये सब कुछ यूएवी से किया जा रहा है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि एक यूएवी जो ड्रोन जैसा उड़ता है और आसमान से हमला करता है। ये विमान तुर्की से मिले हैं यूक्रेन को, और यही विमान आसमान से कहर बनकर टूट रहे हैं। यह हमले का सिर्फ एक वीडियो है। इसने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तेल के कई टैंकर तबाह कर दिए हैं। रूस के कई सैन्य साजो सामान का जखीरा इसने बर्बाद कर दिया है। यूएवी बॉम्बर जो है वो लगातार रूस के लिए खतरे का सबब बनता जा रहा है। और इस महायुद्ध के 13वें दिन विवेक, बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। कई घर तबाह हो गए, पूरे के पूरे इलाके तबाह हो गए। सुमी रीजन से बड़ी तस्वीर आई जहां 21 लोगों की मौत हो गई और 2 उसमें बच्चे भी थे। बिल्कुल, सुमी वही इलाका है जहां एक दिन पहले दावा किया जा रहा था कि रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया है, लेकिन शाम ढलते ही रूसी सेना ने सुमी में ऐसी गोलीबारी की कि सुबह तक नजारा बदल चुका था। यूक्रेन पर नॉनस्टॉप हमला जारी है। 13वें दिन भी यूक्रेन के शहरों में तबाही का मंजर है। रूस ने सुमी शहर के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल से हमला किया। अटैक में 2 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि 13वें दिन रूसी सेना ने कीव में आम लोगों को निकालने के लिए बनाए गए ह्यूमन कॉरिडोर पर हमला किया, जिसमें 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए रूसी सेना लगातार अपनी संख्या बढ़ा रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेनी सड़कों पर रूसी टैंकों की मूवमेंट साफ देखी जा सकती है। इस बीच रूसी सेना ने डोनेत्स्क में केमिकल प्लांट के पास 2 खदानों पर हमला किया। यह हमला रिहायशी इलाकों में किया गया। रूस जहां यूक्रेन पर जोरदार हमला कर रहा है, वहीं यूक्रेन का भी पलटवार जारी है। ओलेस्की में यूक्रेनी सेना ने रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। यूक्रेन का ज़ाइटोमीर शहर भी रूस के हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गया है। रूसी बमबारी में घरों को भारी नुकसान हुआ है। माइकोलाइव में रूसी सेना ने बस पर हमला बोल दिया। हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। इस बीच कीव पर हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। अलर्ट सायरन को साफ सुना जा सकता है।
13 दिन से जारी रूसी प्रहार ने यूक्रेन के शहरों को तहस नहस कर दिया है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। इमारतें खंडहर हो गई हैं। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। जान बचाने के लिए हजारों यूक्रेनी हर दिन अपना देश छोड़ने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर कीव से आ रही है, जहां पर कीव में रूसी मिसाइल गिरा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। जी हां, कीव के रिहायशी इलाके में बताया जा रहा है कि रूसी मिसाइल गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कीव में रूसी मिसाइल गिरा है। रिहायशी इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये मिसाइल गिरा है। जमीन में धंसे मिसाइल की तस्वीरें देखिए, ये पूरी तरह से जमीन में धंस चुका है और पूरे जो जमीन में धंसी हुई तस्वीरें सामने आई हैं, ये कीव, राजधानी कीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाका है जहां पर ये जो व्यक्ति है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे उसके घर के पास ये मिसाइल आकर गिरा। ये मिसाइल फटा नहीं है बताया जा रहा है, और उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तो बड़ी तस्वीरें, एक एक करके जो तस्वीरें आ रही हैं वो जगह जगह जो तबाही मची है उसकी बानगी बता रही हैं। ये शख्स बता रहा है कि किस तरह उसके घर के बाहर इस तरह मिसाइल आकर जमीन में धंस गया। तो इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। बड़ी कवरेज के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।